हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। चलो, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू अगेन. टुडे वी आर गोना डिस्कस प्राइवेट इक्विटी, चैप्टर 11 of self-paced module, financial services and capital market. I'm shooting this class for ICAI to apply on their expression of interest. A broad profile or brief profile about myself. I'm CA Rupesh Mishra. I have also done my CS. I have also passed out CWA. Passed out means passed out with all India rank. I have done a certification course from IIM Ahmedabad. It was under an ICAI MOU. I have also visited, or I'll say I have attended a workshop or a certification course from ISB Hyderabad, from my corporate, my company. I passed out in May 2008. Since then, through campus placement, I am working in various corporates, so I have around 16, 17 years of experience. I am also teaching students across subjects for last 15 plus years. I'm proud to have multiple or many of my students doing very good in their life. In the recent attempt also, many of my students in article passed out. Passed, not out. Okay. So now the chapter is private equity. It's a very, very interesting chapter, very, very important chapter for a finance professional, budding finance professional like yourself. जहाँ पर भी पैसा involved है ना, wherever it is about पैसा, and पैसे में भी specifically equity. लोन लाना ही मत कीजिए क्योंकि लोन वापस करना पड़ेगा. इक्विटी भी देनी पड़ेगी, but there is no hard code rule कि इक्विटी देनी ही पड़ेगी. Other persons or other partners are coming to join and take risk along with the promoter. So broadly to discuss, I mean, let's go in an order. So इस chapter में हमें क्या पढ़ना है, private equity क्या होती है, आपने बचपन से सुना होगा. I'll clarify your concept and we'll continue to discuss it going forward also. Meaning and classification of private equity, cost of investing, why will people invest in private equity, exit route, though it is an equity, but it's a separate type of equity, it's a different distinct type of equity. They want to अपने शेयर सेल करके बाहर भी जाना चाहते हैं. So what are the various routes which a private equity player envisage for exiting out of the company? That also is covered in this chapter. Valuation कैसे होती है private equity की, because it's a follow-on equity in the business. तो आप कैसे लोगे? वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, बायआउट के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं. बायआउट मींस इन अ वे इट बाय द फॉर्म ऑफ एग्जिट टू द इक्विटी इन्वेस्टर्स, आई मीन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. सो उसको डिस्कस करेंगे. हर्डल रेट क्या होता है. पेड इन कैपिटल इजी है, बट विल जस्ट डिस्कस इट आउट. Important is the term sheet. Term sheet is a document which is getting drafted between two set of shareholders, existing shareholder, promoter shareholders and the private equity investor. अब बोलो सर दो इक्विटी वालों में कैसे हो सकता है भाई, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है. टू डिफरेंट सेट ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, दो शेयर होल्डर ने आपस में एग्रीमेंट किया, बट उसके टर्म शीट को देखना समझना. यू कैन रिप्रेजेंट बोथ प्रमोटर एज वेल एज प्राइवेट में. बाद में आप प्राइवेट इक्विटी प्लेयर खुद भी बनोगे, बट इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट इक्विटी फंड्स अपने पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, इसको ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे. सो मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी very well quickly covered because we have to finish the subject, I mean this topic in 10 to 15 minutes. So private equity, as the word suggests, it's not a public equity. तो public equity क्या होती है, तो जिसने बंदे ने कंपनी खोली हो तो प्रमोटर की इक्विटी हो गई. अगर वो आईपीओ ले आया, ये लिस्टिंग करा के एंड ऑल दैट स्टफ, पूरा कंप्लायंस फॉलो करके, ऑफरिंग मेमोरेंडम में जो भी आईपीओ का प्रोसेस होता है, देन दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी इज यू हैड ओपन ए कंपनी, सपोज यू आर प्रमोटर, उसने कंपनी खोली हुई थी, सपोज उसने अपने 10 करोड़ रुपए डाले हुए थे पहले, ये जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह. अब 10 करोड़ में 100% था, उसको कोई पार्टनर मिला, उसको पैसे और चाहिए थे, पैसे खत्म हो गए, बंदे ने पीछे जाके इक्विटी ही ले ली, से उसने 5 करोड़ और डाल दिए. अब वो 5 करोड़ में उसको 50% भी दे सकता है, उसको 30% भी दे सकता है, उसको 10% भी दे सकता है, अगर इसमें ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन स्टेज क्या चल रही है. तो ये जो सेकंड इन्वेस्टर आया 5 करोड़ लेके,
दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी होता कौन है, कौन चलाता है प्राइवेट इक्विटी को? सो जनरली ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। the main form of private equity, the largest form of the private equity is the VCs. तो ये उसके बाद छोटे आएंगे, सीड कैपिटल, एंजल, वो भी आएगा, नीचे कवर होगा। So they are generally the institutional investors who are willing to support the talented startups. So मोटा मोटा इसमें जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज अपना पी खोल के रखते हैं, ऐसा होना चाहिए भैया। कैपिटल की गेम है ये, इसमें अकेले में दिमाग नहीं लगेगा। डेफिनेटली दिमाग लगेगा फंड मैनेजर का कि किस कंपनी में पैसा डालना है, बट एनालिसिस करने पे उसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उस पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केट, बट पैसा चाहिए। तो लार्ज कॉर्पोरेट हाउस म्यूचुअल फंड्स भी डालते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं, वो डालते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, रतन टाटा जी ने कई कंपनियों में डाला हुआ है, मुकेश अंबानी जी ने भी डाला, जितने के पास 5-10 करोड़ रुपए डालते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना। कंपनी ग्रो करेगी तो इनका पैसा भी ग्रो करेगा। अभी वी विल टॉक अबाउट द रिटर्न। सो ये एक एसपीवी बन जाती है। देयर आर मल्टीपल सेक्टर स्पेसिफिक पी फंड, सेक्टर स्पेसिफिक वीसी फंड। कोई एग्रीकल्चर स्पेस में आ गया, कोई टेक स्पेस में आ गया, कोई एजुकेशन स्पेस में आ गया, कोई हेल्थ केयर स्पेस में आ गया, कोई एक टेलीकॉम स्पेस में अगर कुछ समथिंग। So there are multiple type of VC funds or scheme wise gets created. So now who are generally getting benefit from the VC funds or the private equity? It's nowadays generally the startups or innovative entrepreneurs, Ola type, high risk, high reward businesses. और जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जो काम जिनका एकदम से सेटअप हो चुका है, या जो ऑलरेडी आईपीओ ला चुके हैं, वो उसमें प्राइवेट इक्विटी क्या डालेगा? वो तो मतलब वो तो फिर शेयर मार्केट में सीधा डाल दी, क्या आप तो डालते भी हो, बट देन दैट्स नॉट द कंसेप्ट ऑफ अ वीसी। So VC or the private equity is a concept wherein they will invest in a company which has not yet been listed to support their expansion, their growth, their funding requirement, with a view, with a target to achieve certain specific percentage of return. They're investing in equity, but it's an equity wherein they will like an exit route. अभी अगली स्लाइड पे एग्जिट रूट आ जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड द वीसी। तो ये स्टार्टअप्स में डालते हैं, कोई निच सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, उसमें कोई लोन नहीं मिल रहा है, इक्विटी नहीं है, तो आ गया। तो दोनों का फायदा है। जिसके पास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैठे हैं यार, वो एफडी में डालेंगे 10% मिलेगा, म्यूचुअल फंड में 15 मिलेगा, इक्विटी में जो भी मिलेगा, रिस्क आता है। एक बिजनेस को सोच समझ के उन्होंने डाला, क्या पता उनको 100% का फायदा हो जाए, क्या पता 200% का फायदा हो जाए, क्या पता दे विल ऑल्सो बी लाइक, जितने भी ये स्टार्टअप फाउंडर्स बिलियनियर बने हैं, साथ साथ में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी तो रिटर्न दिए इन्होंने साथ साथ में। भाई जब कंपनी बिकी फ्लिपकार्ट, मेरे ख्याल से सचिन और बेनी वेंसल का 20% से कम था स्टेक, 80% तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का ही था। सेम गोज विद द पेटीएम। जब पेटीएम अपना आईपीओ लेके आया, तो उसने सारा जो एग्जिट दिया प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को, 2000 रुपए के रेट से, अभी 780 पे चल रहा है। एनी हाउ, सो दैट्स द ब्रॉड कंसेप्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बट विल कवर दिस टॉपिक इन डिटेल इन अदर फॉलो अप सब्सिक्वेंट वीडियोज। जैसे इस चैप्टर के लिए कवर हो गया, बट जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। कंसेप्ट इज सिंपल, बट डिटेलिंग फर्दर इज वेरी वास्ट। सो बनता कैसे है वीसी? अपने बड़े जो सेटिंग अप ऑफ वीसी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके जो बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उन्होंने एक एसपीवी बना ली एंड देन दे फॉर्म अ प्राइवेट इक्विटी फर्म। इसमें वंस एक एसपीवी इन प्लेस, कुछ जनरल पार्टनर होंगे, जो पर्सन जिसका आइडिया था, द गाय हु एक्चुअली वांटेड टू डू। तो जनरल पार्टनर कुछ लिमिटेड पार्टनर्स को ले आया और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ले आया। ये तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, तो कुछ इन्वेस्टर्स को ले आया और उसने पूरा फंड पूल कर लिया। फंड पूल करने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन की जनरल इन्वेस्टर कितना बड़ा है, ही विल अपॉइंट एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तब ये एक एम्प्लॉई है। सो आइडली द कंसेप्ट इज ऑफ जनरल मैनेजर। तो उसका एक इन्वेस्टमेंट, जनरली द जनरल मैनेजर or partner would overlook all the affairs of the investment manager, responsible for the management, operation, administration and any kind of decision making. They are appointed by the private equity firm. Definitely अगर suppose जनरल पार्टनर का इस फर्म में से 20% है, मतलब मिनिमम 10% तो जनरली होता ही होता है, तो अगर 20% है, they are one who are running the company, they are one who are taking all the decision, but on behalf of the SPV,
मतलब जिसका 51% होता है प्राइवेट को, आप जानते हो कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर द बॉसेज, बट जनरली दे गाइस द वन हु विल टेक अ लीड. लिमिटेड पार्टनर्स कम इन अ वेरी लिमिटेड कंट्रोल. अभी मुझे भी एक कोई बंदा, उसने अपनी बनाई है प्राइवेट इक्विटी. आई वाज आई वाज अमेज्ड. ही ऑफर्ड मी लिमिटेड पार्टनर रोल. कुछ करो आप, थोड़ा बहुत करो, तो उसमें भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिलेगा एटसेट्रा. जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल करते हैं. तो इतना भी मैं हाई नेटवर्थ नहीं हूँ, बट कुछ एंजल फंड वगैरह में हम डाल सकते हैं यार, इससे क्या है. इन्वेस्टिंग की टिकट साइज 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है. कुछ एक स्टार्टअप आइडिया है, कुछ आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, कुछ इवन कोई एक सीए ने मिलके कोई आईटीआर फाइलिंग का अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है. सो देयर यू कैन पार्टिसिपेट. इन्वेस्टमेंट मैनेजर एनालाइज द डिफरेंट प्रपोजल. पूरे इंडिया में इतने सारी चीजें घूम रही. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, लोगों को कैपिटल तो चाहिए. जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो आप में से भी कईयों को कैपिटल चाहिए होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर एनालाइज करेगा. क्योंकि देखो, फैक्ट तो यही है कि जो भी आइडियाज होते हैं, जो स्टार्टअप अगर खुल भी गया, तो इसमें से भी सक्सेस रेट तो कम होता है ना. तो उस जिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर विल एनालाइज. अब कोई बोलेगा कि मैं उबर लेके आ रहा हूँ. अरे भाई, उबर तो ऑलरेडी है. कोई बोलेगा मैं ओला लेके आ रहा हूँ. मेरे को एक दोस्त मिला, वो कह रहा है कि जैसे उबर है वैसे मैं ट्रक का काम करना है. वेरी गुड आइडिया. तो उसको आप एनालाइज करोगे. Once the deal is finalized, investment is placed in form of private equity. मतलब आपको स्टेक मिल जाता है उस फॉर्म को. स्टेक की वर्किंग वैल्यूएशन अभी नीचे आएगी. उसके बाद एक्सपर्ट एक बंदा, क्योंकि कंपनी बोर्ड के थ्रू चलती हैं, 1 or 2 members will get appointed on the board also. Generally VC, because they come in large term, 20%, 25%, 30% कंपनी लेते हैं, तो 1 से 2 बोर्ड की सीट भी वो ले लेंगे. आप इसको फॉलो करते होगे, अपना जो है भारत पे का फाउंडर, तो उसका बहुत ही इशू चला है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ. एग्जिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विल जस्ट डिस्कस. बिजनेस मॉडल क्या है? सेम ही है. फंडामेंटल आइडिया बिजनेस मॉडल कंपनी का होना चाहिए. एबिलिटी टू जनरेट, जिसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, ये वीसी का मॉडल है. दे विल इन्वेस्ट इन हाई बेट टैलेंटेड इंडिविजुअल. फंडामेंटल अगर आइडिया अच्छा है, तो सब लोग क्यों नहीं करते भाई? नहीं लगते थे. बैंक विल नॉट फंड एनी आइडिया. बैंक को वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एस्टेब्लिश कैश फ्लो चाहिए, और इट्स रिस्की बेट. आप आईपीओ लगाओगे वो भी फेल हो सकता है. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, दे टेक रिस्क. दे टेक रिस्क इन मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनीज. अगर 1 2 3 डूब भी जाते हैं, फिर भी अगर उनके से 60% ऑफ देयर बेट्स टर्न आउट पॉजिटिव, और से 2 3 टर्न आउट टू बी वेरी हाई पॉजिटिव, तो 2 3 डूबने से उनको फर्क नहीं पड़ता. बट नॉर्मल इन्वेस्टर, बैंकर्स, दे विल नॉट फंड. So they obviously, जितना ज़्यादा short term होगा, to get the cash flow to reach to their valuation, private equity players will like it. Future prospects are taken over by the bigger entity. हाँ, तो बाद में क्या होता है, once the private equity players are going to out, तो कोई ना कोई बड़ा, या तो उसका IPO हो जाएगा, जैसे मैंने पेटीएम का एग्जांपल दिया, या फिर उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, दैट कोई अंदर दूसरा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आके वैल्यू पे खरीद लेगा. और कई बार मैनेजमेंट प्रमोटर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि प्रमोटर को भी उस समय एक उनको लगता है कि हमें 30% अभी हमें सस्ता ही मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Apart from the revenue perspective, VC also investigates the possibility of how much startup can brand recall. So मतलब ब्रांड बनेगा आगे, कोई नया इनोवेटिव आइडिया है, और समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई द स्टार्टअप. VC के इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होता है? स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करेगा, अब शेयर मतलब 10 of 1000 और 1 of 100 और मे बी 1 of 50, तो एटलीस्ट 100 हो गई होगा कि इतनी मार्केट में इतनी डिमांड है. उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस किया इन्होंने. ड्यू डिलिजेंस के बाद ही ये रेशो आया, और उसमें भी ड्यू डिलिजेंस में आगे भी अगर इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस डाल के, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करके, इंश्योर करके, उसमें उन्होंने पैसा डाल दिया. पैसा डालने के बाद वो 3 साल 4 साल वेट करेंगे, देन दे विल आस्क फॉर एग्जिट रूट. तो एग्जिट का मतलब क्या? अगर इन्होंने सपोज 100 करोड़ डाले थे, तो 3 4 साल में उसको एक पर्टिकुलर रेट पे एग्जिट करेंगे. अगर वो आईपीओ जा रहा है, तो इसकी किस्मत है कितने पे आईपीओ क्लोज हो रहा है, बट उसका आईपीओ का जो प्राइस है वो भी ये लोग डिटरमाइन करेंगे. टाइप ऑफ वीसीज, हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, बट जस्ट 19 पेज का चैप्टर है. आई एम श्योर मच इजियर, और आप सबको पता है. आई नो आज के जो सीए हैं, आजकल का जो जमाना है, उनको सब पता है. सीड कैपिटल, अरे भाई, एक बंदा बोल रहा है मेरे को एक ये टेक्नोलॉजी बनानी है, या मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ है ही नहीं, मेरे फ्रेशर है, उसको सीड, बीज, वेरी इनिशियल स्टेज कैपिटल, क्राउड फंडिंग.
क्राउड फंडिंग क्या होती है, जैसे कि देयर आर वेरियस नेटवर्क्स नाउ, एज आई टेलिंग यू, पी इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड। तो ऐसा नहीं है कि जनरल पार्टनर जहाँ जाके इन सबको ढूंढते रहेगा, कि कोई जनरल पार्टनर होगा वो इन सबको जाके ढूंढेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनरल पार्टनर ने एक ऑनलाइन ही खोल दिया काम, यू नो, जनरल पार्टनर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दिया, या देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लाइक IAN है, इंडियन एंजल नेटवर्क, यू नो, स्टार्टअप इंडिया। सो यहाँ पर आप अपने आप ही अप्रोच करके, एक पूरा एक सेटअप बना हुआ है, आप उसमें फंड हाउस में आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करके मेंबर बन जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। मतलब एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी 100, 150, 200, 1000 इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, कोई आइडिया आएगा वो उसमें फंड करेंगे। तो द नंबर इन दिस टाइप ऑफ VCs आर लार्ज, बट डेफिनेटली इट ऑपरेट्स थ्रू अ फंड मैनेजर, तो आपको तो पीछे से 2-3 लोग ही दिखेंगे। अर्ली स्टेज फंडिंग लाइक सीड फंडिंग, इंटरिम फंडिंग, ब्रिज, ये होता है कि जब आप एक, लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी 2-3 फैक्ट्रियां ऑलरेडी चल रही हैं, अब आपको एक्सपेंशन करना है, कुछ है नहीं अभी उसमें, कैश फ्लो इतना नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एक साउथ में प्रोडक्ट है, एक नॉर्थ में भी होना चाहिए, एक वेस्ट में भी होना चाहिए, सो उसके लिए आपको मिजनाइन और ब्रिज फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम डेट, बट अगर डेट नहीं मिल रहा, देन यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ फंडिंग, एक्सपेंशन फंडिंग वी जस्ट डिस्कस। सीड कैपिटल ब्रॉडली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दीज आर कॉल्ड इनक्यूबेटर ऑल्सो। सो इट इज अ वेरी वेरी प्रिलिमिनरी सोर्सेज ऑफ फंड प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। लाइक फॉर एग्जांपल कोई अपना CA फर्म खोलना चाहता है, अरे भाई लैपटॉप तो होना चाहिए तेरे पास, कुछ एक ऑफिस लीज करना होगा, इफ यू वांट और समथिंग लाइक दिस, जस्ट एन एग्जांपल, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो सीड फंडिंग। क्राउड फंडिंग आई जस्ट एक्सप्लेन, ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट स्टार्टअप लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मैंने नाम दिया आपको, IAN टाइप, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा। अर्ली स्टेज, देखो यार, to be a better finance professional you will have to do Google, you have to be on top of the market. It is not like a company law और GST और टैक्सेशन की आपको एक्ट पढ़ लिया सब कुछ आ गया। थोड़ा बहुत आपको आपके माइंड को डेली, मार्केट इज वेरी डायनामिक, पढ़ना पड़ेगा आपको। अर्ली स्टेज फंडिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपका एक सेटअप आइडिया खड़ा हो चुका है, आपका एक सॉफ्टवेयर का दिख रहा है कि ये सॉफ्टवेयर आने वाला है, तो उसको इन्हांस करने के लिए जो फर्स्ट सेट ऑफ PE फंड आता है उसको CDJ बोलते हैं, या अर्ली स्टेज फंड इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इंटरिम फंडिंग विच जस्ट डिस्कस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। टिपिकली हाइब्रिड, जनरली ये हाइब्रिड ही आती है वैसे, जनरली बिकॉज इट्स वेरी लो रिस्क, लो रिस्क होता है तो फिर PE इतने ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तो सम पार्ट ऑफ यू कैन फंड फ्रॉम डेट, सम पार्ट यू कैन फंड फ्रॉम VCs। अब देखो, डेट का मतलब इन ए वे चीपर, VCs का मतलब इन इक्विटी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, अपने 11वीं से पढ़ते आ रहे हो आप। एक्सपेंशन फंडिंग, अगर किसी को आपको कोई लार्ज साइज कंपनी को चाहिए, तो सम टाइम अगर उनको कोई नया आइडिया आ रहा है, दे कैन ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, if it was an SP, if it was a subsidiary, if it is not a listed company, they can approach VCs. So ये दोबारा से दिखा दिया, सीड कैपिटल, छोटे छोटे इनिशियल फंडिंग, फिर आपकी इंटरिम फंडिंग आ गई, और एक्सपेंसिव। 5 तरीके के लाइफ साइकिल होते हैं जिसपे VCs फंड कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर इज ऑल्सो टाइप ऑफ, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ VC, VCs आर angel investment investors are a type of P, private equity. VCs are a type of private equity. VCs play in a larger ticket size, से 1 करोड़ से ऊपर का। एंजल इन्वेस्टर वर्क ऑन अ मच लेसर टिकट साइज, से 50 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। कंसेप्ट ब्रॉडली सेम ही है। यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स आर रिटायर्ड फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर वहां पे एम्प्लॉय था, वहां पे पैसे बना के सक्सेस करके उसने पैसे बना लिए, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट गिविंग देयर बेट ऑन टू, फिर उनको पता है तो वो दे कैन टेक अ कॉल। व्हाई विल दे टेक कॉल, आप समझ ही चुके हो। अगर आपने भी एंजल इन्वेस्टर में 10 लाख रुपए लगाए, और बाद में वो पैसा आपका 1 करोड़ रुपए बन गया, तो वो आपको स्टॉक मार्केट से और डेट से तो रिटर्न मिलेगा नहीं ऐसा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर आ गए। बाय आउट फॉर ए PE, PE का बाय आउट कैसे होता है? बाय आउट का मतलब एग्जिट, आई डोंट नो, स्ट्रेट अवे यही दे दिया।
बट एक हो गया लिवरेज बायआउट, एक हो गया मैनेज बायआउट, मैनेजमेंट बायआउट। तो मैनेजमेंट मीन्स आपके जो इनिशियल प्रमोटर थे, इनिशियल जो प्रमोटर थे, लाइक उसका 100% शेयर था, मैंने पहले दिखाया, अगर उसने किसी ने 40% स्टेक पी ने ले लिया है, तो अब ये मैनेजमेंट, उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। नाउ दे हैव आल्सो मेड आउट सम फंड्स एटसेट्रा, दे मे हैव कैश। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रमोटर होते हैं, यू नो, स्टार्टअप अलग केस है, बट जो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं, देयर मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस विच वाज एट इंडिविजुअल लेवल ओन्ड बाय देम, उनकी एक अलग लिस्टेड कंपनी चल रही है, दूसरी कंपनी में उन्होंने कम पैसे लगाया, उनको भी लगा था रिस्क है, प्राइवेट इक्विटी को ले आए। अब प्राइवेट इक्विटी जाना चाहता है, उन्होंने अपनी कंपनी से दूसरा पैसा डाल दिया, तो देवर सिटिंग ऑन कैश। लिवरेज बायआउट, इसमें टाटा का एग्जांपल दिया हुआ है। कई बार आप उसी कंपनी में लोन लेकर इन्वेस्टर्स को पे कर देते हो और शेयर होल्डर चेंज हो जाते हैं, तो अब ऐसा कोई लोन क्यों देगा? अब लोन देने के लिए बैंकर को ट्रस्ट होना चाहिए, यू नो, न्यू मैनेजमेंट पे। बट दिस ऑल्सो वर्क्स। टाटा ने लोन लिया, टाटा ने लोन लेके उनको पे आउट कर दिया, वट एवर, या फिर एक कंपनी जो चल रही थी उसका लोन टेक ओवर कर लिया, टाटा को लोन मिल गया, द प्रीवियस पीज आर आउट। हर्डल रेट, अब ये हर्डल रेट क्या होता है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अगर आप डेट लेते हैं, सपोज पी की लाइफ है 3 से 5 साल, तो हम 5 साल लेके चलते हैं। अगर आप डेट लेते तो हर साल उस पर 8% से लेके 11% का इंटरेस्ट देते। Why will P guy will give you the money? P guy will give you the money, that's why अभी नीचे टर्म शीट भी आएगा कंसेप्ट। वो बोलेगा देखो भाई, मैं 5 साल के लिए आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, 5 साल में या तो आप मेरे को आईपीओ करके प्रॉपर एग्जिट दे दो, उसमें मेरी किस्मत है मुझे क्या मिलता है, और या तो आप कुछ भी कर लो, बाय आउट कर लो एक्सेट्रा। बट ये सारी जब चीज़ें आप करोगे, बाय आउट वगैरह, तो मेरा मिनिमम जो हर्डल रेट है 8 से 11% तो मुझे लोन से ही मिल जाता है। बोरोइंग में अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता, एफडी कर देता, मिल जाता। मुझे मिनिमम से 15% चाहिए। आइडली ये रेट 18 से 20% होता है, तो जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसका डबल होता है ये। अगर बैंक में लोन आपको 10%, आई मीन नॉट डबल बट आइडियली, अगर बैंक में रेट आपका 10 चल रहा है, तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में 15 चल रहा होगा, दे गाइस विल प्रेफर अराउंड 20। पेड अप कैपिटल बताने की जरूरत नहीं है, जितना भी पैसा उस कंपनी में ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल। ये कंसेप्ट यहाँ पर क्यों लिंक हो रहा है मुझे नहीं पता, मे भी इसलिए लिंक हो रहा होगा क्योंकि कई बार ट्रांचेज में फंडिंग होती होगी, तो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। अब आ गया भाई टर्म शीट। टर्म शीट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट करेगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, हो सकता है दे आर इक्विटी इन्वेस्टर, बट एट द बैक एंड बोथ द शेयर होल्डर्स, द प्रमोटर शेयर होल्डर, मैनेजमेंट शेयर होल्डर, कैन हैव एन एग्रीमेंट विद द प्राइवेट इक्विटी। सो उसमें फीस स्ट्रक्चर अलाइन होना चाहिए कि भैया किसको कितनी फीस मिलेगी। हार्वेस्ट ईयर, जिस साल में आपको एग्जिट मिलेगा उसको हार्वेस्ट ईयर बोलते हैं। डाउन राउंड, अगर डाउन राउंड होगा, डाउन राउंड का मतलब एक बार कंपनी की वैल्यू थी, इन्होंने एग्जांपल करके दिखाया हुआ है, एक कंपनी की वैल्यू थी 100 करोड़, आपका इन्वेस्टेड आया था 40% पे, अब कंपनी की वैल्यू ही कम हो गई है, 6 लाख हो गई है, मतलब पहले 10 लाख थी अब 6 लाख हो गई है। अब उससे भी आपने पैसे उठा लिए 30 लाख, बट वो बोल रहा है कि अब तो भैया मैं 50% स्टेक लूंगा। तो आपका स्टेक गिरेगा या उठेगा? प्रमोटर का तो गिरेगा ही गिरेगा। कॉमन स्टॉक का मतलब इनिशियल, ये तो गिरेगा ही गिरेगा, बट आपका क्या होगा? तो ये हो गया डाउन राउंड। इसी में ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको कोई प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो आपका पहले भी 40 था, इनिशियल 40 था, आपका अभी भी 40 है। जो नया बंदा आया 50 पे, 6 लाख की वैल्यू पे, उसको मेन प्रमोटर का काम हो गया। बहुत जल्दी समझा दिया बट इजी है। सो जो जो फर्स्ट बंदा था, वो कुछ भी लेके आया, वो 4 लाख रुपए लेके आया 40% स्टेक के लिए, इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। 4 लाख क्यों लाया 40% के लिए? क्योंकि उस समय कंपनी की वैल्यू 10 लाख थी। नंबर छोटे हैं बट कभी कभी ये नंबर बड़े भी होते थे, एग्जाम्पल के लिए। तो 10 करोड़ कह लो, 10 करोड़ के अगेंस्ट में 4 करोड़ लाया, 10 लाख ही रखते हैं, किताब में 10 लाख लिखा हुआ है। अब कंपनी की वैल्यू गिर गई, गिर सकती है, वैल्यू गिरेगी भाई, बहुत सारे स्टार्टअप की वैल्यू गिरती है। एक बार आइडिया फ्लॉप हुआ, पेटीएम का एक बिजनेस में कंप्लायंस इशू हुआ, शेयर गिर गया। सेम थिंग गोज विद वेरियस अदर्स। जोमेटो में इशू आया था, शेयर सीधे 250-300 रुपए से 40 रुपए पे आ गया था, इवन 36 तक गया था। तो वैल्यू गिरती है। तो नया बंदा अपने हिसाब से, अगर आपको पैसे चाहिए लो, नहीं चाहिए तो इसको, भैया उसने बोला 6 लाख पे मुझे पैसे चाहिए, उसने 3 लाख लिए, 50% हुआ। अब
एक तरीका ये हो सकता है कि आपकी भी वैल्यू गिरेगी, जितने भी प्रायर इन्वेस्टर थे। एक आगे कि प्रायर वाले की जो इक्विटी का परसेंटेज है वो सेम रहेगा, प्रमोटर का गिरेगा। ठीक है। ब्रेक फीस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिसके ऊपर मैंने अलग से भी एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो जब आप सब कुछ 6 महीने तक आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, उसके बाद बिना मर्जी के आप उसको तोड़ देते हो, सो एक टर्म शीट एग्री करने के बाद भी, देन फाउंडर जनरली ब्रीच हो जाते हैं। और अगर कई बार अपने एक्सक्लूसिविटी साइन कर रखी है उसको तोड़ते हो, तो फिर कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी आपको। मतलब ये दिस इज अ कॉस्ट इन विच समवन वुड समवन हैव टू पे फॉर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इवन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, उसको एक लेवल तक ठीक लगा, 3 महीने से रिव्यू कर रहा था, अब उसने टर्म शीट साइन कर ली, जब पैसे देने की बारी पैसे ही नहीं दे रहा, कैश ही नहीं दे रहा, तो फिर टर्म शीट का क्या फायदा। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक फीस का कंसेप्ट भी टर्म शीट में डाला जाता है। एक्सक्लूसिविटी आप समझ रहे हो, एक टाइम पर एक बंदे से बात करनी है। देर कैन बी नॉन एक्सक्लूसिव डील्स, एक टाइम पे 10 लोगों से बात करो। तो एक्सक्लूसिव डील देना ना देना ये प्रमोटर की या दोनों की बात है। आपको एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, यू शैल नो द कंसेप्ट। डू यू वांट एन एक्सक्लूसिविटी और डू नॉट वांट एन एक्सक्लूसिविटी? आप आप क्या चाहते हैं? तो काइंड ऑफ नॉन कॉम्पीट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट प्रेफरेंस जनरली होता है कि लोग कर लेते हैं, डिपेंडिंग, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप, सिचुएशन, टाइप ऑफ इन्वेस्टर एंड सिचुएशन वेयर दे आर इन राइट नाउ। ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10 का मैंने आपको 20 बताया था। 20 कैसे बताया, क्योंकि 10 तो आपको अगर एफडी में मिल जाता है, स्टॉक मार्केट उस समय आपको 15 दे रही होगी, तो 20 से 22 होगा। सो इट्स अ बॉल पार्क नंबर, बट इट्स जनरली द हर्डल रेट विच वी जस्ट डिस्कस पहले। सो वही कंसेप्ट है इसका, कि आपको थोड़ा सा बेटर रेट मिलना ही पड़ेगा। एंड इन जनरल ऑल्सो, अगर आप प्राइवेट इक्विटी के पास जाओगे पैसे लेने, तो वो आंख बंद करके तो नहीं देंगे, दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट पीपल। एग्जिट रूट फॉर अ पीई, सबसे बेस्ट तो होता है, स्वीटेस्ट होता है कि आईपीओ हो जाए, क्योंकि जनरली पीई जब आते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंपनी इज गेटिंग रेडी फॉर एन आईपीओ विदिन 3 to 5 years। हाँ, कई बार पुश करके थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करते हैं, उसमें चीजें मिस होती है। तो आईपीओ के लिए भी कंपनी को एक लेवल पे होना पड़ेगा, बट बेस्ट इज हाईली सक्सेसफुल एग्जिट स्ट्रेटेजी। अगर आपको लगता है कंपनी उस लेवल पे आ रही है, पब्लिक जो होती है वो थोड़ा प्रीमियम देती है विद लेस रिटर्न एक्सपेक्टेशन। पब्लिक इन्वेस्टर्स आर नॉर्मल, जब सब रिस्क रोज खत्म हो जाते हैं तभी आते हैं, इसलिए दे पे एक्स्ट्रा प्राइस ऑल्सो। ठीक है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, अब आपने पी इन्वेस्टर को पता होता है, वो उसने हेल्थ केयर में डाला था, हेल्थ केयर में उसने सपोज 100 करोड़ रुपए डाले थे। अब पीछे से कोई बड़ा हेल्थ केयर प्लेयर अपोलो से पोलो आ गया, उसने बोला भाई अब तेरा हो गया 3 साल, तो अपना मेरे को बेच के चला जा। एनडीटीवी के साथ यही काम हो गया, या जो भी कर लो अलग था। तो आपको उसी इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर आके आपको खरीद लेते हैं स्ट्रेटेजिकली। सेकेंडरी सेल, एक बार एक पी जो था उसने सपोज जो भी है उसको अपना रिटर्न मिल गया, वो दूसरे पी को बेच देगा कई बार, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। रीपर्चेज बाय एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू कि फाउंडर मेंबर जो दूसरे लाइन के, अगर उनके पास पैसे होते हैं तो दे कैन आल्सो बाय आउट। अनफॉर्चुनेटली देयर इज आल्सो अ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मैं नहीं पढ़ा रहा सो लिक्विडेशन का मतलब इक्विटी थी, वो स्टार्टअप आइडिया था, ज्यादा नहीं चला, नहीं चला, जो भी मर्जी कर लो नहीं चला, मतलब फ्लॉप हो गया। स्नैपडील पहले इतना चलता था, वो धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है शायद, आई डोंट नो। सो स्टार्टअप बहुत सारे फ्लॉप भी होते हैं, आई थिंक द रेशो वुड बी वेरी हाई, बट आई से 20 to 30% तो फ्लॉप होते ही होंगे। स्टार्टअप ही है ना, दैट्स व्हाई दे आर रिस्की बेट्स, दे कैन राइज आल्सो। हु हैड एवर थॉट कि यार ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना ज्यादा चल जाएगा? हु हैड, एंड हर एक प्रोडक्ट उस पर बिकने लगेगा, इवन लैपटॉप, टेक्निकल आईटी प्रोडक्ट्स। तो रिस्क लेते हैं लोग। जो मैंने दोस्त का एग्जाम्पल बताया, वो एक उबर जैसा फॉर फॉर ट्रक बना रहा है, आई डोंट नो, सॉफ्टवेयर बनाने में उसके 2 4 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, इन्वेस्टर फंडिंग, एज फंडिंग लग गया, अगर नहीं सक्सेसफुल है तो फिर वो लिक्विडेशन में जाएगा। वैल्यूएशन कैसे होती है? बड़ा प्री मनी पोस्ट मनी, ये भी आप बहुत सुनते हो भाई, सीधी सी बात है, बड़ा इजी सिंपल, इन्होंने, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट आईसीआई, बड़ा सिंपल सा मेथड है। पहले कंपनी में 10,000 रुपए पड़े थे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए डाले हुए थे, नए इन्वेस्टर ने आके 4,000 रुपए डाल दिए, तो सीधे सीधे कंपनी की वैल्यू अब 14,000 हो गई ना। अब बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना चलता, अगर लॉसेज हो गए प्रॉफिट हो गए, आई एग्री। तो इक्विटी की वैल्यू ये हो गई, अगर कीपिंग एवरीथिंग टुगेदर एट ऑन, ये नंबर इनका जो प्री मनी का नंबर फिक्स होना चाहिए। जो प्री मनी का नंबर है, ये नॉट द कैश इन्फ्यूजन,
This is the value of company prior to funding. प्रायर टू फंडिंग, तो प्रायर टू फंडिंग अगर 10,000 वैल्यू थी, 4,000 और डालते तो 14,000 होगी, क्योंकि पैसा जो प्राइवेट इक्विटी, अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो 4,000 है ये बिजनेस में आ रहा है, इन टू द बिजनेस, इन बिजनेस। अगर इससे आप किसी को एग्जिट दे रहे हो तो फिर वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि पैसा घुसा ही नहीं बिजनेस में। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। सो ओनरशिप डाइल्यूट हो ही जाती है डेफिनेटली। अब ये 14 पे 30% आ गए तो ओनरशिप तो डाइल्यूट होगी। लिक्विडेशन प्रेफरेंस मतलब इंपॉर्टेंट टर्म कि आप कैसे चाहते हो, आप आईपीओ चाहते हो या आप क्या चाहते हो। सीरीज एंड सीरीज भी, इनिशियल राउंड को सीरीज ए बोलते हैं, बाकी सारे राउंड को उसके बाद सीरीज बी एंड फॉलोड अप बाय जो पहले पैसा डाला है सीरीज ए हो गया। आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो भी कह लो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, और क्योंकि मैं ट्रेजरी का बंदा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे रिटर्न ऑफ इंटरप्राइज और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, विच वी जस्ट डिस्कस कि फॉर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इट इज जनरली 2x। टर्मिनल वैल्यू, सब कुछ अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट हो गई, बिक गई, तो बचेगा क्या, या फिर एट द एंड ऑफ 3 years आपकी वैल्यू कितनी है आपके निकलने के बाद, एग्जिट थ्रू सेल ऑफ। ट्रांचेज एज ए स्पोक, क्योंकि अगर आपने कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में इन्फ्यूज किया, अगर वो 10 रुपए का शेयर था, आपने अभी 5 ही दिए हैं, तो आपने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, बैलेंस 5 कॉल्स बची हुई हैं, तो ट्रांचेज में भी फंडिंग हो सकती है, ठीक है। डीम लिक्विडेशन का मतलब इंक्लूड चेंजेस, कंट्रोल, लिक्विडेशन, कुछ हो ही नहीं रहा, आई मीन सेल ऑफ मोस्ट ऑफ द एसेट, अब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कंपनी चल रही है, जो मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन फीस दे रही है, बट वो अदरवाइज डीम्ड ही है। प्राइवेट इक्विटी फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल जस्ट टेल यू, क्योंकि जीपी मीन्स जनरल पार्टनर, इट वाज हिज आइडिया। तो जो भी आपने सपोज 100 रुपए डाल के 300 रुपए कमाए, ठीक है, जीपी के साथ 5 प्लेयर और थे, 5 पार्टनर और थे, तो जो भी उन पांचों पार्टनर का हर्डल रेट एग्री हुआ होगा या वट एवर, या फिर जीपी को उन्होंने एक अलग से कुछ दे रखा होगा, से कहीं पे जीपी पे लिखा हुआ था कि 5% तो मैं भी लेके जाऊंगा अलग से। So, that's how this is an arrangement between the various players or various sponsors or partners of a PE fund. The broad concept is GP, which is, जो बंदा सारे एफर्ट डाल रहा है, तो पैसिव पार्टनर्स को कम मिलेगा, तो उसको देने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। एक बार हर्डल रेट अचीव होने के बाद रिस्क तो ये भी लेगा, विदाउट रिस्क तो मिलेगा नहीं कि मैं सबसे पहले पहले लूंगा। हर्डल रेट के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 5, जैसे भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। So guys, this was it. I'm really enjoyed it, and thank you ICI for giving this opportunity. I look forward to be in touch with you. I know I was a bit fast, but I have to cover the whole topic, and we'll discuss it in detail also, hopefully very soon. Thank you. Take care. Wish you all a very, very happy studying with ICI, Digital ICI.